Hello guys, कैसे आप सभी लोग aspirants, my friends. So today we will gonna start our zoology session in which we will conclude firstly structural organization in animals. As you can see, it's the first chapter of zoology, class 11. So if we talk about structural organization in animals, we need to know what is a tissue. Basically, tissue is a group of cell. Means tissue is a group of cell. Tissue tissue is a group of cell. Tissue is a group of cell along with intercellular matrix. Along with intercellular matrix or intercellular substance. A tissue is a group of cell or group of cells along with intercellular matrix that perform a specific function perform a specific function means a tissue is a group of cells along with intercellular matrix that performs a similar function or a specific function. Then this group of cell is known as tissue. अब जैसे कि हम जानते हैं टिश्यू आर ऑफ 4 टाइप्स. बेसिकली इफ वी remember them, tissue basically are of 4 types. First, epithelial tissue. Second, connective tissue. Third, muscular tissue. Fourth, nervous tissue. We know tissue are of 4 types. Tissue are of 4 types. We know tissue are of 4 types. Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. We know epithelial tissue are also of 2 types, which are simple epithelial tissue, compound epithelial tissue. Then if we talk about in more brief, simple epithelial tissue and compound epithelial tissue, both are divided into types. Simple epithelial tissue is divided into 3 types: simple squamous, simple cuboidal, simple columnar. Simple squamous, simple cuboidal, simple columnar. And compound epithelial tissue is divided into 2. Compound epithelium is divided into 2. First, stretchable and non-stretchable. Stretchable compound epithelial tissue is also known as transitional epithelium or urothelium epithelium. And if we talk about in more brief, as we concluded that epithelial tissue are of 2 types. One is simple epithelial and other epithelial tissue, and other is compound epithelial tissue. Then we said that simple epithelial tissue are of 3 types: simple squamous, simple cuboidal, and third, simple columnar. Simple squamous, simple cuboidal, simple columnar. Then if we talk in more brief, we know on the modification of simple cuboidal and simple columnar epithelial tissue, the tissue so formed after modification is known as glandular epithelium. This glandular epithelium can be divided on 2 bases. First, on the basis of number of cells. It is divided into 2: unicellular and multicellular. And on the basis of number of ducts, presence or absence of ducts. On the basis of presence or absence of duct, we can divide it into 3 subcategories. First, any guess? Exocrine. Third, endocrine. And fourth, heterocrine. एक्सोक्राइन जहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट होती है. एक्सोक्राइन इज जहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट होगी वो एक्सोक्राइन, जहाँ पे नहीं होगी, जहाँ पे एब्सेंट होगी वो एंडोक्राइन, और जहाँ पे दोनों मिक्स टाइप होगी, यानी कि यहाँ पे जैसे कि हमारे टेस्टिस का होता है, टेस्टिस में जो डक्ट्स होती है वो हेटेरोक्राइन होती है. ठीक है. फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सिंगल सेल्ड है तो यूनिसेलुलर है, अगर बहुत मल्टी सेलुलर है यानी कि मल्टीपल सेल्स है तो मल्टी सेलुलर है. फिर उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें
अच्छा, जो सिंपल क्यूबॉइडल है उसको भी हम डिवाइड करते हैं दो में। एक होता है हमारा नॉर्मल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और एक होता है हमारा ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और सिंपल कॉलमनार को भी यदि हम बात करें तो ये 3 टाइप का होता है। एक तो भाई नॉर्मल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है नॉर्मल सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है हमारा ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, और एक होता है हमारा सीलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। इस सीलिएटेड में क्या होता है, जैसे ये हमारा एक कॉलमनार सेल है, ये हमारा जैसे ये हमारा एक कॉलमनार सेल है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इन सीलिया का काम क्या होता है, किसी भी एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। जैसे कि मैं बात करूँ, हमने पढ़ा था कि यूट्रस है, यूट्रस के अंदर क्या होता है, जो गैमेट ओवरी से निकलता है उसे एम्पला वाले रीजन तक पहुँचाना होता है ताकि वो फर्टिलाइज कर सके। तो उसे फर्टिलाइजेशन तक पहुँचाने से पहले हमें उसे पहुँचाना पड़ेगा ना। तो ओवरी से जहाँ से गैमेट बनेगा, बन के एम्पला वाले रीजन तक कौन पहुँचाता है, सीलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ओके। फिर अब इनके बारे में कुछ ब्रीफ में पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, फिर इसके दोनों टाइप्स के बारे में, फिर इन तीनों सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, फिर सिंपल क्यूबॉइडल के टाइप्स के बारे में, फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम के दोनों बेसिस पे से एक्सप्लेन करेंगे, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, एपिथेलियल टिश्यू। तो अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के नाम के बारे में बात करें तो एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है अपॉन यानी ऊपर, उसके ऊपर, और थीलियल का मतलब क्या होता है, थीलियल का मतलब यानी कि कवरिंग। मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जिसका काम क्या होगा, या तो कवरिंग का होगा, और अपॉन मतलब किसी चीज़ के ऊपर होगा, या तो वो इंटरनली बॉडी फ्लूइड से होगा या वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से अटैच होगा। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू आर दोज टिश्यूज दैट performs a covering or lining of body or some part of body or organ either or organ internally, it can be internally as well as externally। मतलब कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किसी भी बॉडी को या तो एक्सटर्नली आउटसाइड द इन्वायरमेंट थ्रू कवर करेगा, या किसी भी बॉडी को इंटरनली कवर करेगा। इसका काम क्या होगा, सिर्फ लाइनिंग का होगा। ठीक है, फिर यदि मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है इनके पास, हमें पता है जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होती है इनके पास क्या ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन उठाते हैं कहाँ से, कनेक्टिव टिश्यू से। क्यों, इनके पास हमें पता है यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट होती है, लेकिन ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। अब ब्लड वेसल्स ही इनके पास अगर नहीं होगी तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, इनके पास ब्लड वेसल्स ही नहीं है, यानी न्यूट्रिशन ही नहीं है। तो ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन उठाते हैं कहाँ से, कनेक्टिव टिश्यू से। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखो, ये क्या है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जहाँ पे हमारी बहुत सारी नर्व्स है, एक आध नर्व यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, और इसके नीचे क्या है, ये है हमारी कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे हमारी ब्लड वेसल प्रेजेंट है। यानी कि इसके अंदर ब्लड है यानी इसके अंदर हीम है यानी हीमोग्लोबिन भी है, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रिशन उठाते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू, और ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद रखेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर यदि मैं बात करूँ इनकी हाई रीजनरेटिव पावर होती है। अब जैसे कि हमें पता ही है कि डायरेक्ट न्यूट्रिशन उठा रहे हैं, खाना बनाने की जरूरत है नहीं, इनका काम क्या है, खाओ और डिवाइड करो। तो हाई रीजनरेटिव पावर यानी कि रीजनरेशन पावर इनकी बहुत फास्ट होगी। जैसे कि फिर बताया मैंने, नर्व्स इन पे प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। नर्व्स क्या करती है, न्यूट्रिशन को ब्लड वेसल से उठा के सीधा इनके डायरेक्ट इनको मिल जाते हैं, जबकि ब्लड वेसल यहाँ पे एब्सेंट होती हैं।
दूसरा, एपिथेलियल टिश्यू से ज़्यादातर ग्लैंड्स बनते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से ही ज़्यादातर ग्लैंड्स बनते हैं, ठीक है। फिर यदि हम बात करें इनके, अब हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू में हमारे कितने, 2 टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, अब जैसे कि हम नाम में देख सकते हैं सिंपल, सिंपल यानी कि सिंगल लेयर्ड होगा, सिंगल लेयर्ड होगा, और कंपाउंड यानी कि मल्टी लेयर्ड होगा। अब ये कहाँ देखने को मिल सकते हैं, अब सीधी सी बात है, सिंगल लेयर्ड है यानी कि कहीं ना कहीं डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन इन सब जगह पे देखने को मिलेगा, जहाँ से पार्टिकल इजीली पास आउट कर सकते हैं वहाँ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। मल्टी लेयर्ड का देखने को मिलेगा, जहाँ पे कंपाउंड हमें वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पे हमें स्ट्रेस की बात करिए, मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस की बात करिए, उससे बचने के लिए हम कंपाउंड एपिथेलियल देखते हैं, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ कहाँ देखने को मिलेगा, उन रीजन्स पे देखने को मिलेगा वेयर सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन अकर्स। ये कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम स्ट्रेस की बात करते हैं, यानी कि इट यूज्ड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अब आप सीधी सी बात आपने पढ़ा होगा सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन कहाँ कहाँ होते हैं। अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा हमने पढ़ा ना कि ऑक्सीजन हमारी डिजॉल्व हो जाती है ब्लड वेसल में, कहाँ पे, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में, यानी कि पहला एग्जांपल होगा इसका एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। दूसरा यदि हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमने पढ़ा था जो, हमें पता है कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जब यूरिन फिल्ट्रेट होता है तो नेफ्रॉन और बॉमन कैप्सूल के बीच में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो यदि हम बात करूँ नेफ्रॉन लिख लेते हैं, नेफ्रॉन बॉमन कैप्सूल, और याद करो, अच्छा, और फिर हमने वो भी तो पढ़ा था कि पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, 70% ऑफ दी वाटर यूरिन में से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें और ब्रीफ में जाएँ, और भी एक्सेट्रा बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, तो हम आगे देखते हैं, इतने 3 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। फिर यदि अगर हम बात करें, हमें पता है सिंपल एपिथेलियल को हमने डिवाइड किया था 3 में, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं। सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, इन तीनों को डिवाइड किया था। अगर मैं ऊपर से बताऊं, ये जो हमारा सिंपल स्क्वैमस है, इसके नाम में क्या आ रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, एक 2D स्ट्रक्चर है, यानी कि सिंपल एक प्लेन, यानी कि ये क्या है, एक पेवमेंट स्ट्रक्चर है, एक टाइल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि सिंपल एक सेल है, एक टिश्यू जो बिल्कुल ही फ्लैट है, यानी कि फ्लैट एंड स्ट्रक्चर या फ्लैट एंड टिश्यू बोल लो, या फिर इसको पेवमेंट लाइक स्ट्रक्चर बोल लो। अब ये जो है प्लेन, ये क्या है, एक सिंगल लेयर होती है, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है तो सिंगल लेयर तो होगा ही होगा, ठीक है। फिर ये कहाँ पे पाया जाएगा, अच्छा, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, बॉडी ऑर्गन्स की कवरिंग में पाया जाता है, कहाँ पे, बॉडी ऑर्गन्स की कवरिंग में पाया जाता है, बॉडी ऑर्गन्स की कवरिंग में पाया जाता है। फिर सिंपल क्यूबॉइडल की यदि मैं बात करूँ, क्यूबॉइडल, अब देखो क्यूबॉइडल है तो इसको आप स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो, क्यूबॉइडल है, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर, यानी क्यूबॉइड टाइप ही होगा इसकी शेप। दूसरा सिंपल कॉलमनार की यदि मैं बात करूं तो कुछ लाइक ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, ठीक है, बस। तो जैसे कि मैंने बताया सिंपल स्क्वैमस है, नाम में स्क्वैमस है यानी कि स्क्वायर टाइप है, स्क्वायर टाइप यानी कि बिल्कुल फ्लैटन स्ट्रक्चर है, फ्लैटन स्ट्रक्चर यानी कि टाइल लाइक स्ट्रक्चर, पेवमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल यानी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, या तो ये ऐसे हो सकता है, या तो इसमें माइक्रोविलाई आ सकते हैं, ब्रश बॉर्डर जिसे कहते हैं। सिंपल कॉलमनार में सिंपल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें याद रखना है बेसिकली, यहाँ पे ऊपर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो गॉबलेट सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, म्यूकस रिलीजिंग होता है, म्यूकस रिलीज करते हैं गॉबलेट सेल्स।
और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, सिर्फ कॉलमनार का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वो कैसा होता है, ओवल होता है। और कहाँ पे होता है, नियर टू द बेस, यानी कि जो बेस है उसके नीचे होता है, मतलब उसके पास होता है, नियर टू बेस। ठीक है, अब इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे। अब पढ़ेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब जैसे कि मैंने बताया सिंपल स्क्वैमस है, स्क्वैमस यानी स्क्वायर टाइप, यानी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, या फिर टिश्यू बोल लो, या फिर पेवमेंट स्ट्रक्चर होगा, फ्लैटेंड और पेवमेंट स्ट्रक्चर। पेवमेंट का मतलब क्या है, टाइल लाइक स्ट्रक्चर है, टाइल लाइक स्ट्रक्चर। फिर दूसरा इसके बारे में हम और बात करें, कहाँ पाया जाएगा, सिंपल स्क्वैमस है, स्क्वायर टाइप है, यानी कि कहीं ना कहीं डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन नहीं पाया जाएगा। तो इसका कहाँ देखने को मिलेगी हमें, जहाँ जहाँ हमारा फिल्ट्रेशन होगा, जहाँ जहाँ डिफ्यूजन होगा, जहाँ जहाँ फिल्ट्रेशन होगा, वहाँ पे हमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल की बात करूँ, एग्जांपल में वही हो गया हमारा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स हो गया, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स हो गया। दूसरा हमारा नेफ्रॉन हो गया, मतलब नेफ्रॉन बॉमन कैप्सूल पीसीटी डीसीटी। फिर तीसरा हमारा एंडोथीलियम हो गया, एंडोथीलियम मतलब कि इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स अंदर का हो गया। दूसरा बॉडी कैविटी की बात करो तो मीजोथीलियम, ठीक है, मीजोथीलियम हो गया। मीजोथीलियम ऑफ बॉडी कैविटी। और जैसे बताया एंडोथीलियम ऑफ लिम्फ कैपिलरी या फिर ब्लड कैपिलरी, लिम्फ प्लस ब्लड कैपिलरी, लिम्फ प्लस ब्लड कैपिलरी। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंपल स्क्वैमस हो गया। अब सिंपल स्क्वैमस में क्या था, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर सेल होता है, पेवमेंट लाइक होता है, फिल्ट्रेशन होता है, डिफ्यूजन होता है। यहाँ पे एग्जांपल एल्वियोलाई ऑफ लंग्स हो गया, नेफ्रॉन, मेसोथीलियम, बॉडी कैविटी, एंडोथीलियम और लिम्फ प्लस ब्लड कैपिलरी। ठीक है, और सिंपल है तो सिंगल लेयर्ड होगा। फिर यदि हम बात करें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा, अब जैसे नाम में ये क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइड शेप ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइड शेप ही होगा, क्यूबॉइड शेप्ड ही होगा। इसका मेन रोल कहाँ होगा, फंक्शन क्या होगा इसका। अब ऐसे याद कर सकते हो, हमें पता है कि सिंपल क्यूबॉइडल जो है उसमें दो टाइप होते हैं, एक नॉर्मल, एक ब्रश बॉर्डर्ड में क्या होता है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, सेल है जो उसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, मतलब कि वहाँ पे सर्फेस एरिया बढ़ जाता है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। तो कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रीशन अच्छी होगी, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन अच्छी होगी। अच्छा, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन अच्छी होगी। अब हमने पढ़ा इसके दो टाइप के होते हैं, दो टाइप कौन कौन से, वही एक नॉर्मल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है हमारा ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। यदि मैं बात करूँ नॉर्मल की, नॉर्मल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और ब्रश बॉर्डर्ड देखें सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो जैसे कि नाम में लिखा है कॉलमनार, यानी कि ये कैसी होंगी, कॉलम शेप्ड होंगी। कॉलम शेप्ड कैसे, जैसे ये हो गया आपका कॉलम शेप्ड होगी। अब ये जो कॉलम शेप्ड है ये भी हमारे या तो नॉर्मल होंगे या ब्रश बॉर्डर्ड होंगे या सीलिएटेड होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो नियर टू द बेस होता है, और इनके सिर्फ कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू ऐसी सेल्स है जहाँ पे गॉबलेट यानी कि म्यूकस रिलीजिंग गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। ये क्या है, हमारी गॉबलेट सेल्स है।
और ये क्या है, म्यूकस है, म्यूकस रिलीजिंग गॉबलेट सेल्स। ये क्या है, ये है म्यूकस, ये म्यूकस है, ये क्या है, ये है गॉबलेट सेल, और ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर यदि इसके हमने पढ़े थे ना 3 टाइप होते हैं, नहीं समझ लेते हैं उसको भी। एक तो था हमारा कौन सा, एक था हमारा नॉर्मल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, एक था हमारा ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और एक था हमारा सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी। ठीक है, अब नॉर्मल, देखो इस वाले टॉपिक में ना सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स याद करने हैं, मेन सिर्फ एग्जांपल्स याद करने हैं। जैसे मैं बात करूँ नॉर्मल सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू कहाँ देखने को मिलेगी, ये हमें देखने को मिल जाएगा, ये हमें कहाँ देखने को मिल जाएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखने को मिल जाएगा। ब्रश बॉर्डर का देखने को मिल जाएगा, ब्रश बॉर्डर है यानी माइक्रोविलाई है, यानी एब्जॉर्प्शन जहाँ कहाँ ज़्यादा होती है, इंटेस्टाइन में ज़्यादा हो जाती है, ये कहाँ देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। दूसरा सीलिएटेड यानी कि जहाँ पे ट्रांसफ़र करने की बारी आती है, ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ होता है, जहाँ पे एक हमारा म्यूकस प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दूसरा हम जैसे मैंने बताया था कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में वैसे स्पर्म का ट्रांसफ़र एपिडिडायमिस से, एपिडिडायमिस। और चौथा वास डिफरेंस, टेस्टिस का ही है, वास डिफरेंस। ठीक है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, नॉर्मल सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ब्रश बॉर्डर्ड, सीलिएटेड। नॉर्मल कहाँ देखने को मिलेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ब्रश बॉर्डर देखने को मिलेगा आपका इंटेस्टाइन में जहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और सीलिएटेड में देखने को मिलेगा आपको, सीलिएटेड का मैं बनाऊँ स्ट्रक्चर, सीलिया है, ये आपका गॉबलेट सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है। याद रखना है इसमें सीलिएटेड में गॉबलेट सेल्स होती है, म्यूकस रिलीजिंग सेल्स, और दूसरा जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल होता है, और साथ ही साथ नियर टू द बेस होता है। ठीक है, याद रखना है पॉइंट। अच्छा, ओके, फिर आगे पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में 2 होते हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब जैसे मैंने बताया था कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर्ड यानी कि कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस की बात होगी। ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल। जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा स्ट्रेचेबल, और एक होता है हमारा नॉन स्ट्रेचेबल। एक होता है हमारा स्ट्रेचेबल, एक होता है नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। तो स्ट्रेचेबल वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम या फिर यूरोथीलियम टिश्यू। अब देखो नाम में आ रहा है यूरो, यानी कि समहाउ कैसे ना कैसे करके ये किसी यूरिनरी सिस्टम से जुड़ा है। यानी कि अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की तो वहाँ पे ये पाया जाता है। अब जैसे हम बात करें तो जैसे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है तो वहाँ पे स्ट्रेचेबल इफेक्ट देखने को मिलता है। जो अगर स्ट्रेचेबल नहीं होगा तो सीधा वहाँ पे बर्स्ट हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू वहाँ पाया जाता है। ठीक है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरिनरी सिस्टम हो गया, आपका यूरेटर हो गया आपके। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैंने बताया, यूरेटर हो गए, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, या फिर आपका मान लो यूरेथ्रा हो गया।
फिर उसके बाद नॉन स्ट्रेचेबल को क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो नॉन स्ट्रेचेबल है ये भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। किसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं? 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। क्या क्या नाम है उनका? कमेंट डाउन कीजिए। तो पहला होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, और तीसरा होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। ठीक है, ये होते हैं हमारे 3 टाइप के नॉन स्ट्रेचेबल। फिर इसके एग्जांपल के बारे में याद करते हैं। ये देखो याद करने की चीज़ है तो इसको तो एज इट इज़ ही रट लो, ठीक है। फिर भी जहाँ तक होगा इजी तरीके से वहाँ तक मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो जैसे मैंने बताया स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल यानी कि सिंपल आपका एक क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर है स्किन, यानी कि कहाँ देखने को मिलेगा? ये लार्ज डक्ट्स ऑफ सिक्रीटरी ग्लैंड्स। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार आपका कंजक्टिव्स ऑफ आई, कंजक्टिवा ऑफ आई। कंजक्टिवा समझते हैं आप लोग? आंखों के बीच में जो बिंदी होती है वहाँ पे, कंजक्टिवा ऑफ आई। दूसरे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की हम बात करें तो इसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज आती हैं। वो कैटेगरीज है केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड में क्या होता है? केराटिनाइज्ड में क्या होता है हमारा? बेसिकली एक डेड लेयर ऑफ केराटिन इज डिपॉजिटेड ऑन दी सरफेस। अगर ये केराटिन की एक डेड लेयर डिपॉजिट हो जाती है स्किन के ऊपर तब उसे कहते हैं हम केराटिनाइज्ड स्किन। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, स्किन, हमारी स्किन क्या है? स्किन के नीचे क्या है? हमारी टिश्यूज़ है। टिश्यूज़ उसके ऊपर एक डेड स्किन है, यानी ये जो स्किन है डेड स्किन, इसे क्या कहते हैं? केराटिन की एक डेड लेयर बनी हुई है, जिसे हम कहेंगे क्या? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। फिर नॉन केराटिनाइज्ड, ऑब्वियसली बात है, जहाँ नॉन केराटिनाइज्ड मतलब वहाँ केराटिन की कोई लेयर डिपॉजिटेड नहीं है। यानी कि अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूँ, एक आपका ओरल कैविटी हो गया और आपका एनल ओपनिंग हो गया, ठीक है, और भी है इसके, और आपका ओरल कैविटी हो गया तो साथ साथ आपका फेरिंग्स भी हो गया। ठीक है, 3 एग्जांपल सफिशिएंट है। फिर उसके बाद ये हमारे क्या कंपाउंड एपिथेलियल थे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमने पता था कि जो ब्रश ये है हमारा सिंपल स्क्वैमस, हमने डिवाइड किया था ना सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को 3 में, सिंपल स्क्वैमस हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। जो हमारा सिंपल क्यूबॉइडल और जो सिंपल कॉलमनार है, इनकी मॉडिफिकेशन से जो टिश्यू बनता है उसे कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो जैसा कि हमें पता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? इट इज़ द मॉडिफाइड टिश्यू ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार टिश्यू। इट फॉर्म्स ग्लैंड्स, यानी कि ये जो टिश्यू है इससे क्या बनते हैं? ग्लैंड्स बनते हैं। इट फॉर्म्स ग्लैंड्स। फिर इसके बाद हमने टाइप में पढ़ा था, इनको हमने 2 बेसिस पे डिवाइड किया था। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। तो अगर मैं इसको दोबारा डिवाइड करूँ, ये है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स में हमने इसको 2 टाइप में डिवाइड किया था, और ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया था। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। सेल्स में बांटा था क्या था? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और डक्ट में क्या था? हेट्रोक्राइन, एंडोक्राइन
और एक्सोक्राइन। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड है, इसके एग्जांपल है आपका गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल और पेरियंथ सेल, पेरियंथ सेल। और मल्टी सेलर के एग्जांपल है आपके बाकी सारे सेल, ऑल सेल एक्सेप्ट आपके ये गॉबलेट सेल और पेरियंथ सेल, एक्सेप्ट गॉबलेट सेल एंड पेरियंथ सेल। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट में हमने पढ़ा था हेट्रोक्राइन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। हमें पता है जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन का मतलब किसी को पता है? पता है तो कमेंट डाउन कीजिए। एक्सोक्राइन का बेसिक ये मतलब है कि असली रियल डक्ट्स आर प्रेजेंट, यानी कोई इमेजिनरी नहीं, कोई मिक्स टाइप नहीं, सिंपल प्योर डक्ट आर प्रेजेंट, रियल डक्ट इज प्रेजेंट, रियल डक्ट इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल की बात करो तो जैसे आपका एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो आपका सिक्रीशन सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे आपके टीयर्स निकलते हैं, टीयर्स, और आपका स्वेट निकलता है, सिक्रेटरी ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, मिल्क हो गया, म्यूकस हो गया। ठीक है, टीयर्स में म्यूकस हो गया, एंजाइम हो गया, सलाइवा हो गया जिससे आपका सलाइवा निकलता है। ठीक है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जिनसे ये सब चीज़ें निकलती है, टीयर्स, मिल्क, म्यूकस, एंजाइम, सलाइवा एटसेट्रा एटसेट्रा। जिससे भी ग्लैंड से ये सब चीज़ें निकलेगी वो एक्सोक्राइन के अंदर आएगा, क्योंकि वहाँ पे रियल डक्ट प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन में क्या होता है? एंडोक्राइन में डक्ट होती है एब्सेंट। एंडोक्राइन में डक्ट होती है एब्सेंट, यहाँ पे रियल डक्ट होती है एब्सेंट, इसलिए इन्हें कहते हैं हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स। हार्मोन सिर्फ हार्मोन रिलीज करते हैं, डायरेक्ट हार्मोन रिलीज, हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स। फिर हेट्रोक्राइन में क्या होता है? हेट्रोक्राइन में मिक्स टाइप ऑफ डक्ट होती है, यानी कि वो हार्मोन्स भी कैरी कर सकते हैं और साथ साथ आपको एक डक्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, यानी मिक्स टाइप यहाँ पे प्रेजेंट है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ जैसे आपका पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में जाना। ठीक है, हमने सिंपल क्यूबॉइडल के बारे में भी जाना, हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, फिर सिंपल में भी हमने सिंपल स्क्वैमस के बारे में पढ़ा, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। सिंपल क्यूबॉइडल को भी हमने दो टाइप में बांटा, नॉर्मल, ब्रश बॉर्डर। सिंपल कॉलमनार को भी हमने तीन में बांटा, नॉर्मल, ब्रश बॉर्डर, सीलिएटेड। फिर उसके बाद हमने इसके मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसको भी हमने दो में बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट। फिर हमने कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा, दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेचेबल जिसे हम ट्रांजिशन एपिथेलियम भी कहते हैं, या फिर यूरोथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा नॉन स्ट्रेचेबल के बारे में जिसे हम स्ट्रैटिफाइड टिश्यू भी कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। फिर हमने वही स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को हमने फिर तीन में बांटा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस को भी हमने दो में बांटा, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड के एग्जांपल क्या क्या थे? स्किन थी हमारी, और नॉन केराटिनाइज्ड के थे स्किन, और नॉन केराटिनाइज्ड के हमारे क्या क्या थे? याद करो, हमारे डेड स्किन के लिए प्रेजेंट नहीं होती, यानी आपकी ओरल कैविटी हो गई, बकल कैविटी हो गई, फेरिंग्स हो गया, और आपका एनल ओपनिंग हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। पहला कैसे, मतलब टाइप्स ऑफ जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट्स मतलब जंक्शन, तो तीन टाइप के जंक्शन होते हैं जैसे कि आपको पता ही है। अब हम पढ़ेंगे सेल जंक्शंस के बारे में। सेल जंक्शंस के बारे में स्टार्ट करते हैं। सेल जंक्शन हमें पता है, जंक्शन जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। जंक्शन जो होते हैं वो हमारे तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? अगर आप लोगों को पता है कि जंक्शन कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। सेल जंक्शंस हमारे तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा कौन सा? एनी गेस? टाइट जंक्शन। पहला होता है हमारा टाइट जंक्शन, दूसरा होता है हमारा टाइट जंक्शन हो गया, फिर दूसरा होता है हमारा हाँ, जंक्शंस में बात करो, तीन टाइप के जंक्शन होते हैं हमारे, टाइट जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन, और दूसरा और आखिरी गैप जंक्शन।
अभी जो एंकरिंग जंक्शन है ये भी 3 टाइप के होते हैं, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम और एदरिंग जंक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू बता देता हूँ। टाइट जंक्शन देखो, जैसे कि मैं बताया टाइट जंक्शन क्या है। कोई भी 2 सेल्स होती हैं, कोई भी 2 सेल जो है, कोई भी दो सेल जो है, इनके बीच में कोई भी 2 सेल, 2 एडजेसेंट सेल के बीच में यहाँ पे हमारा टाइट जंक्शन बनता है। यहाँ पे किसका बना होता है, ऑक्लूडिन और क्लोडिन प्रोटीन का। इसका बना होता है ऑक्लूडिन और क्लोडिन प्रोटीन का। इसे मैं आगे बताऊंगा, अभी बस समझ लो आप, मैं आपको आगे फिर एक्सप्लेन करूंगा। ये जो हमारी 2 एडजेसेंट सेल है, इनके बीच में पाया जाता है टाइट जंक्शन। बेसिकली ये एक ढप्पा स्कार होता है जो किसका बना होता है, ऑक्लूडिन और क्लोडिन प्रोटीन का बना होता है। इसका काम क्या होता है, जो ऊपर जो अब मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल पार्टिकल्स है, उनको यहाँ से मतलब एपिकल पार्ट से बेसल पार्ट की तरफ जाने नहीं देता, उसे बचा के रखता है, प्रिवेंट करता है। तो ये जो है हमारा टाइट जंक्शन, इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ molecules from apical part to basal part. Then this type of junction is known as tight junction. फिर एंकरिंग जंक्शन में बात करूँ, एंकरिंग जंक्शन में हमारे सिलेबस में सिर्फ एदरिंग जंक्शन है। एदरिंग जंक्शन में क्या होता है, बेसिकली एक यहाँ पे भी जैसे ये है जो हमारा एदरिंग जंक्शन है, नाम में ही आ रहा है। जैसे एंकरिंग है, एंकर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एंकर हम यूज़ करते हैं किसी शिप को हमें स्टिल रोकना होता है, बिल्कुल स्टिल रखना होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारा एदरिंग जंक्शन है, एदरिंग जंक्शन यहाँ पे क्या काम होगा, 2 एडजेसेंट सेल को आपस में सीमेंटिंग मटेरियल, मतलब उनको जोड़ के रखना, यही काम होता है किसका, हमारे एदरिंग जंक्शन का। फिर ये किसका बना होता है हमारा, ये जो हमारा एदरिंग जंक्शन है ये किसका बना होता है, ये बना होता है हमारा किसका, अगर आपको पता है तो कमेंट करें। अब ये जो हमारा टाइट एदरिंग जंक्शन है, एदरिंग जंक्शन में यहाँ पे फिलामेंट्स होते हैं। अगर ये जो फिलामेंट है, अगर ये जो फिलामेंट है, अगर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, अगर ये एक्टिन फिलामेंट है, अगर ये एक्टिन फिलामेंट है तो किसके बने होंगे, कैदरिन प्रोटीन के। और यदि कोई इंटरमीडिएट फिलामेंट है तो किसके बने होंगे, यदि अगर ये जो हेयर लाइक ग्रोथ यहाँ से निकल रही है, अगर ये हमारी एक्टिव फिलामेंट है तो किसकी बनी होगी, कैदरिन प्रोटीन की बनी होगी। और यदि इंटरमीडिएट फिलामेंट है तो किसकी बनी होगी, इंटरमीडिएट फिलामेंट किसकी बनी होती है भाई, डेस्मोसोम्स की है। सही है, डेस्मोसोम्स की बनी होती है। फिर यहाँ पे हेमीडेस्मोसोम्स वाला मॉलिक्यूल होता है। फिर यदि मैं बात करूँ गैप जंक्शन की, गैप जंक्शन में क्या होगा, बेसिकली एक कनेक्शन, हमारा कनेक्सॉन प्रोटीन है, उसका काम क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है 2 सेल। जैसे कि ये 2 सेल्स है, इनके बीच में एक कनेक्शन बना देगा, ये जो 2 सेल्स है इनके बीच में एक कनेक्शन बना देगा, जिससे कि इस सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सम लार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो सकते हैं इस मॉलिक्यूल में बाय कनेक्सॉन। ये जो कनेक्सॉन है यही बनाता है आपको क्या, गैप जंक्शन। होपफुली आपको समझ में आया। अगर आपको अंडरस्टूड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे दोबारा बताऊंगा स्पेसिफिक टॉपिक वाइज। ये शुरू करते हैं अपना टाइट जंक्शन। जैसे कि मैंने बताया टाइट जंक्शन क्या है, टाइट जंक्शन इज बेसिकली अ जंक्शन विच इज made between 2 cells, which is made between 2 cells that prevents molecules of apical part to cross towards basal part। यानी कि ये क्या है, हमारा टाइट जंक्शन है। ये जो जंक्शन है इसका काम क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स है उनको ऊपर से नीचे जाने नहीं देता है। अब ये जो हमारा जंक्शन है किस प्रोटीन का बना था, किसी प्रोटीन का तो बना ही होगा, तो वो प्रोटीन होता है ऑक्लूडिन प्रोटीन और क्लोडिन प्रोटीन। ऑक्लूडिन और क्लोडिन प्रोटीन का बना होता है। फिर बात करते हैं एदरिंग जंक्शन के बारे में। एदरिंग जंक्शन बोल लो या डेस्मोसोम्स बोल लो, वो डिपेंड करता है कि हमारा फिलामेंट कैसा है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर कैसा है। यदि एक्टिन फिलामेंट होगा तो किसका बना होगा, कैदरिन प्रोटीन का। और यदि हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट है तो किसका होगा, डेस्मोसोम्स का होगा। तो कह लो जैसे एदरिंग जंक्शन कह लो या डेस्मोसोम्स कह लो, डेस्मोसोम्स। ओके। अब एदरिंग जंक्शन क्या है, बेसिकली ये भी कुछ इसी टाइप का ही समझाता हूँ। ये हमारे 2 सेल हैं, 2 एडजेसेंट सेल है। अब ये जो सेल है इनके बीच में यहाँ पे
यहाँ पे होता है हमारा एथेनिक जंक्शन सेंटर में, और यहाँ से हेयर लाइक ग्रोथ निकलती है। अब ये जो हेयर लाइक ग्रोथ है, अगर ये हेयर लाइक ग्रोथ किसकी बनी होगी, एक्टिन फिलामेंट की, एक्टिन फिलामेंट की, तो इसको बनाने वाला प्रोटीन कौन सा होगा, कैदरिन, कैदरिंग प्रोटीन। और दूसरी बात, अगर ये इंटरमीडिएट हुआ, अगर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट हुआ तो उसे कहेंगे हम डेस्मोसोम्स। क्या कहेंगे, डेस्मोसोम्स। फिर अगर मैं और बात करूँ, ये एथेनिक जंक्शन का काम क्या होता है, इसका सिर्फ एक ही रोल है, ये सीमेंटिंग मटेरियल है, एक सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, ये एथेनिक जंक्शन हो गया हमारा। फिर गैप जंक्शन के बारे में समझते हैं। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन में क्या होगा, जैसे ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, यहाँ पे एक ट्यूब बन जाती है। ये जो ट्यूब है किस प्रोटीन की बनी होती है, ये बनी होती है हमारी कनेक्सॉन प्रोटीन की। ये किसकी बनी होती है, हमारी कनेक्सन प्रोटीन की, कनेक्सन, ये बनी होती है हमारी कनेक्सन प्रोटीन की। इसकी बनी होती है कनेक्सन प्रोटीन की। अब ये जो गैप जंक्शन है इसको हम कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो जंक्शन है ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, स्मूथ और कार्डियक मसल्स के रीजन में पाई जाती है, स्मूथ और कार्डियक मसल्स के रीजन में पाई जाती है हमारी क्या, गैप जंक्शन। इसको हम कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर ये हमारा कनेक्सन प्रोटीन है, कनेक्सन प्रोटीन से बना हमारा गैप जंक्शन है। इसका इसका रोल क्या होगा, अलाउज आयंस some small molecules, some big molecules to transfer from one cell to other। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो रिपीट करके देखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आयंस होंगे आपके, जो आपके यहाँ पे सब मॉलिक्यूल्स होंगे स्मॉल लार्ज, उसको अलाउ करता है पास करना, उसे अलाउ करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, फिर ये तो होंगे आपके सारे सेल जंक्शंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा टिश्यू क्या होता है, टिश्यू, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। Tissue is a group of cell along with extracellular matrix that perform a specific function is known as tissue। मतलब टिश्यू एक बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल है, यानी कि बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप है जो कि एक जैसा काम करते हैं, और उनके साथ ही साथ उनके अंदर एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी एक फ्लूइड टाइप भरा हुआ है, उसको हम कहते हैं क्या, टिश्यू। उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू हमारे चार टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल में हमने पढ़ा कितने, तीन टाइप के होते हैं, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, इनको भी हमने डिवाइड किया था, इनकी मॉडिफाइड कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। फिर सिंपल स्क्वामस को, सिंपल क्यूबॉइडल जो है उसको हमने डिवाइड किया था किसमें, दो में, नॉर्मल और ब्रश बॉर्डर्ड। सिंपल कॉलमनार को हमने तीन में किया था, नॉर्मल, ब्रश बॉर्डर्ड, सीरिएटेड। फिर उसके बाद हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम को करा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट, हेटेरोक्राइन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन में किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो हमने दो में डिवाइड किया था, स्ट्रेचेबल, नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल वाले को हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी कहते हैं, यूरोथेलियम एपिथेलियम भी कहते हैं। फिर दूसरा हमने बात की थी किसका, उसका नॉन स्ट्रेचेबल वाले को हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। फिर हमारा जो था नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रेटिफाइड वाला, उसको हमने तीन में बांटा था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। अब स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार हो गया। फिर उसके बाद हमने डिवाइड किया था किसको, जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस था, दो में, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेल जंक्शंस के बारे में पढ़ा। सेल जंक्शन हमारे तीन टाइप के होते हैं, टाइट जंक्शन, एथेनिक जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन में जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन और क्लोरीन प्रोटीन का बना होता है। एथेनिक जंक्शन बना होता है किसका, अगर एक्टिन फिलामेंट बना हुआ है तो कैदरिन प्रोटीन का, और यदि इंटरमीडिएट फिलामेंट बना हुआ है तो डेस्मोसोम्स का। गैप जंक्शन जो है वो कनेक्सन प्रोटीन का बना होता है। अगला टॉपिक है हमारा क्या, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली याद होना चाहिए, पॉइंट तो बहुत ही बेसिक है। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, connective tissue is the most abundant tissue in an human body। most of the human body most abundant tissue, यानी कि ज़्यादातर बॉडी में यही पाया जाता है।
मोस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी या मोस्ट ऑफ बॉडी इज कवर्ड विद दिस, इज कवर्ड या फिर कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वो पढ़ा था कि जो टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर जैसे मैंने बताया, क्या अभी पढ़ेंगे इसको, आप ब्रीफ में पढ़ेंगे, छोटा सा पॉइंट है वो बता देता हूँ आपको, है ना। टिश्यू के अंदर दो चीज़ें होती हैं, टिश्यू के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? एक तो होते हैं सेल्स और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल्स कौन कौन से होते हैं, किसी को आइडिया है? हाँ करेक्ट, फाइब्रोब्लास्ट, फिर मास्ट सेल्स, फिर मैक्रोफेज, सही है सही है, फिर न्यूट्रोफिल्स, सही है, इजनोफिल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी दो चीज़ें होती हैं हमारी। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है इसमें भी हमारी दो चीज़ें होती हैं। एक तो होगा आपका जहाँ पे फाइबर्स होगा, यानी एक तो मैं लिख देता हूँ ग्राउंड सब्सटेंस होगा आपका, ग्राउंड सब्सटेंस होगा आपका, और एक होता है आपका फाइबर्स। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस में आपका कौन सी आ जाएगा? ग्राउंड सब्सटेंस में आ जाएगा आपका म्यूको पॉलीसैकेराइड, म्यूको पॉलीसैकेराइड, और दूसरा आ जाएगा आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का काम क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, फिर फाइबर्स में आपका आ जाएगा कौन कौन सा? तीन फाइबर आ जाएंगे आपके, एक आ जाएगा आपका कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलेट फाइबर। कोलेजन का कलर पता है किसी को? कोलेजन का होता है वाइट, सही बोला, कोलेजन का कलर होता है वाइट, इलास्टिन का होता है येलो और रेटिकुलेट का होता है पिंक। ठीक है, फिर उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है? फाइब्रोब्लास्ट बेसिकली फाइबर्स बनाता है, जैसे कि फाइबर्स बनाता है। ये जो हमारा, ऐसी समझता हूँ, देखो ये जो फाइब्रोब्लास्ट है इसका काम होता है फाइबर्स बनाना। कौन कौन से फाइबर्स बनाता है? कोलेजन और इलास्टिन। मास्ट सेल जो होती है, मास्ट सेल, इसका काम होता है मास्ट सेल जो होता है ये तीन केमिकल बनाता है। कौन कौन से? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। अब देखो हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन एक्ट एज एंटी, मतलब साइज बढ़ा देता है, यानी वैसोडाइलेटर। ये क्या है? ये है वैसोडाइलेटर, यानी जो ब्लड वेसल्स है उनका साइज बढ़ा देगा, वैसोडाइलेटर। सेरोटोनिन क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। और हेपारिन क्या है? हेपारिन है एंटीकोगुलेंट। रिपीट करेंगे, मास्ट सेल तीन केमिकल रिलीज करता है। कौन कौन से? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। हिस्टामिन का काम होता है वैसोडाइलेटर, यानी ब्लड वेसल्स के साइज को बढ़ा देगा। सेरोटोनिन का वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल का साइज घटा देगा। और हेपारिन एंटीकोगुलेंट, यानी खून को जमने नहीं देगा, एंटीकोगुलेंट। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्रोफेज तो आप लोगों को पता ही है, ये बेसिकली बॉडी में जो भी बैक्टीरिया आएगा या जो भी फॉरेन सब्सटेंस आएगा उसको किल कर देगा, यानी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा बाय किलिंग बैक्टीरिया और फॉरेन सब्सटेंस। कैसे करता है? ये हमारा मैक्रोफेज है। मान लो ये कोई हमारा बैक्टीरिया है, तो पहले क्या करेगा? ये अपने फिन्स यानी अपने सूडोपोडिया फैलाएगा, इसको इनगल्फ करेगा, यानी कि समहाउ लाइक दिस, इनगल्फ करके इसको अपने अंदर कंप्लीटली इनगल्फ कर लेगा, फिर अपने एंजाइमेटिक रिएक्शन से इसको किल कर देगा, बैक्टीरिया किल कर देगा। ठीक है, फिर न्यूट्रोफिल्स को ऐसे याद करो, एन, न्यूट्रोफिल्स एन है। अगर एन को अगर आप एक डंडी ऐसे जोड़ देते तो कैसा बन जाता है? डम्बल शेप्ड। यानी कि अगर कोई इसकी वो पूछे, क्या अगर कोई इसकी शेप पूछे तो कैसे बताओगे? डम्बल शेप्ड। ईजनोफिल्स की बात कर लो तो ईजनोफिल्स का जो ई है इसका बीच का हटा दो, बीच का हटा के कैसा बन जाएगा? समथिंग लाइक हेडफोन। तो क्या बन जाएगा? हेडफोन शेप्ड। ठीक है, फिर हमने सेल्स के बारे में जाना। ग्राउंड सब्सटेंस हमें पता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाइलुरोनिक एसिड बनाता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में पता है,
कॉलेजन इलास्टिन और रेटिकुलेट फाइबर्स के बारे में पता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारे 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से बताइए, कमेंट करें। एक होता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होता है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं कम लेकिन मैट्रिक्स होता है ज़्यादा। और डेंस में क्या होता है, डेंस यानी कि ऑब्वियसली बात कुछ समथिंग स्लरी टाइप होगा, यानी फाइबर्स होंगे ज़्यादा और मैट्रिक्स होगा कम, ठीक है। स्पेशलाइज में तो हम ऐसे डिफाइन नहीं करते, स्पेशलाइज में तो हम कुछ ऐसे फाइबर मैट्रिक्स नहीं डिपेंड करते, हम बताते हैं कि जैसे बोन है, बोन की स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाएगी, कार्टिलेज रहेगी, यानी कि जो चीज़ बोन कर रही है उसी का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कार्टिलेज, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो मैं वैसे बता देता हूँ कि कहाँ देखने को मिलती है। स्केलेटन में बात करो तो बोन कार्टिलेज हो गया, या फिर यूँ बोल लो ब्लड और लिम्फ हो गया, फ्लूइड की बात करोगे तो ब्लड और लिम्फ, ठीक है। अच्छा, अब लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी हम 2 टाइप में बांटते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एरियोलर और एक होता है एडिपोज, एरियोलर और एडिपोज। वैसे ही डेंस को भी हम 2 में बांटते हैं, एक होता है हमारा रेगुलर और एक होता है हमारा इरेगुलर। एरियोलर में क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया फाइबर्स होते हैं कम, मैट्रिक्स होते हैं ज़्यादा। एरियोलर में क्या होगा, जो मैट्रिक्स होगा यानी जो स्पेस होगी उसमें क्या होगा, एयर यानी कि वैक्यूम होगी, वैक्यूम। इसमें क्या होगी, एरियल टिश्यू में बेसिकली जो मैट्रिक्स होगा ज़्यादा उसे हम क्या कहेंगे, वैक्यूम होगी इसके अंदर। दूसरा, ये एक्ट एज अ फ्रेमवर्क, यानी कि फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज अ फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी। एग्जाम्पल की बात करूँ तो मास्ट सेल हो गया, ठीक है। एडिपोज मतलब क्या होता है आपका, फैट स्टोरिंग सेल। क्या होता है, फैट स्टोरिंग सेल, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे मैट्रिक्स ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे फैट स्टोरिंग सेल होंगे, फैट स्टोरिंग सेल होंगे। इनका काम क्या होगा, एक्ट एज ए इंसुलेटर और शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर होता है और इरेगुलर होता है। रेगुलर समझते हैं, देखो सीधी सी बात है, अगर रेगुलर का मतलब ये हुआ जो आपका फाइबर्स है, जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका फाइबर्स है, ये प्रॉपरली अलाइंड है, ये आपका बनाता हूँ फिर दिखाता हूँ। अब जैसे ये आपका रेगुलर है, यानी कि आपका जो मैट्रिक्स है और जो फाइबर्स है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज्ड है, तो उसे कहेंगे हम रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और जो आपका अगर ऐसे समथिंग लाइक हुआ यानी इरेगुलर शेप का हुआ तो उसे हम कहेंगे इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, इसके एग्जांपल लिख लो, इसके लिख लो। इसके होते हैं आपका, जो आपका बोन टू मसल कौन जोड़ता है, बोन टू मसल कौन जोड़ता है, टेंडन, सही बात है। दूसरा, बोन टू बोन कौन जोड़ता है, लिगामेंट। फिर इरेगुलर की बात करें तो आपका इरेगुलर आपका क्या होता है, डर्मिस ऑफ स्किन, यानी कि स्किन की ऊपरी वाली खाल, नीचे वाली डर्मिस ऑफ स्किन। दूसरा, और अगर आप बात करो और भी एग्जांपल, तो आपका ऑर्गन्स के ऊपर कवर्ड रहता है, कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, 2 बहुत है। फिर और इसके बारे में अगर हम बताएं, फाइबर्स है, ठीक है। फिर अब इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ये बोन, कार्टिलेज, लिम्फ, ब्लड, टेंडन, लिगामेंट, डर्मिस ऑफ स्किन, कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, ओके। कार्टिलेज के बारे में जानेंगे, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पहले हम जानेंगे कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज, पहले हम कार्टिलेज के बारे में जानेंगे। कार्टिलेज इज, ये क्या है, हार्ड है एंड फ्लाइएबल,
हार्ड एंड फ्लाइबल यानी कि ये सख्त है, और फ्लाइबल मतलब कंप्रेसिबल यानी कि इसको हम मोड़ सकते हैं। कंप्रेसिबल, हार्ड एंड कंप्रेसिबल। ये जो कार्टिलेज होती है बेसिकली 3 टाइप की होती है। तो कार्टिलेज में 3 चीज़ें होंगी, कार्टिलेज में 3 चीज़ें होंगी। एक तो होगा आपका फाइबर्स, एक होगा आपका सेल्स, और एक होगा आपका क्या, मैट्रिक्स। प्योर मैट्रिक्स भी होगी। ठीक है, फाइबर्स कौन कौन से सकते हैं? फाइबर्स वही जैसे कि हमें पता ही है कौन कौन से थे। हाँ सही है, कोलेजन। दूसरा इलास्टिन फाइबर। यदि कोलेजन का कलर क्या होता है? वाइट होता है, और येलो इलास्टिन। ये फाइबर्स होते हैं इसमें। सेल्स की बात करूँ तो 3 सेल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, तीसरा कॉन्ड्रोप्लास्ट। अब मैट्रिक्स की बात करूँ तो मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रियन। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियन। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोप्लास्ट के बारे में, सेल्स के बारे में। तो अगर मैं वैसे कॉन्ड्रोब्लास्ट कौन से सेल्स होते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं इमैच्योर, यानी कि ये मैच्योर नहीं होते, इमैच्योर होते हैं। इमैच्योर, और ये डिवाइड कर सकते हैं। मैच्योर डिवाइडिंग सेल्स, ये क्या होते हैं? इमैच्योर डिवाइडिंग सेल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं ऑन दी पेरिफेरी, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑन दी पेरिफेरी ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ये होता है हमारे क्या, कॉन्ड्रोब्लास्ट। फिर बात करेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में। कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैच्योर डिवाइडिंग सेल्स, मैच्योर नॉन डिवाइडिंग सेल्स होंगे, मैच्योर नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन दी लैकुने, यानी कि प्रेजेंट इन लैक्यूने, प्रेजेंट इन लैक्यूने, विच मतलब कि या तो एक जो पूरी हमारी कॉन्ड्रोसाइट एक सेल है, मतलब जो हमारा पूरा एक कार्टिलेज है, एक कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स होती है, जो खाली जगह होती है उसे हम लैक्यूने कहते हैं, एम्प्टी स्पेस को। उस लैक्यूने, एक लैक्यूने के अंदर यानी एक कार्टिलेज के अंदर एक कॉन्ड्रोसाइट्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉन्ड्रोसाइट्स भी हो सकते हैं, विच कैन बी वन और इन ग्रुप। ठीक है, फिर बात करेंगे कॉन्ड्रोप्लास्ट। जैसे ही कॉन्ड्रोब्लास्ट आपस में कुछ लग रहा है, यानी कि इन दोनों में आपस में रिलेशन हो सकता है। ये जो कॉन्ड्रोप्लास्ट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज। यानी कि मैक्रोफेज यानी कि ये क्या होते हैं? कार्टिलेज ईटिंग सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्टिलेज ईटिंग सेल्स होते हैं। ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ये तब इस्तेमाल होते हैं जब बच्चा जो होता है, बेबी की जो कार्टिलेज जो बना होता है, कार्टिलेज उसको ब्रेक डाउन करके जब वो बच्चा एडल्ट हो जाता है, उस एडल्ट में उस कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट कर देना, बोन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो कॉन्ड्रोप्लास्ट है इसका काम क्या होता है? ये जो कार्टिलेज है इसको तोड़ के उसकी जगह पे बोन का आना। मैं डायग्राम की बात करूँ, जैसे ये है, ये हमारा एक कार्टिलेज है, अब जैसे कि हमें पता है ये आउटर मोस्ट वाली लेयर है, इसे कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियन, इसे हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, इसे कॉन्ड्रियन। यहाँ पे तो ब्लड वेसल होती हैं। ठीक है, दिखा दो। अब जैसे हमें बताया ये क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम। ये क्या है? हमारा कॉन्ड्रियन है, मैट्रिक्स। ये क्या है? हमारा लैक्यूने स्पेस जो है, लैक्यूने, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर? जल्दी बताओ। इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा क्या? कॉन्ड्रोसाइट्स। ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये क्या है? वैस्कुलर इन नेचर में। वैस्कुलर का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, जबकि जो हमारा कॉन्ड्रियन है ये एवैस्कुलर है, यानी कि यहाँ पे ब्लड वेसल क्या होगी? एब्सेंट होगी।
ब्लड वेसल क्या होगी, यहाँ पे एब्सेंट होगी, यहाँ ब्लड वेसल क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे टाइप्स। हमें पता है 3 टाइप की, नहीं इसका बोन के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हमें पता है कि जो हमारा कार्टिलेज है वो 3 टाइप की होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन कीजिए। हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज और लास्ट इलास्टिक कार्टिलेज, और लास्ट फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज में क्या होगा, ऐसी होती है। हाइलिन कार्टिलेज जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है नेचर में, ट्रांसपेरेंट इन नेचर। और दूसरा इसका फीचर है, हाइलिन कार्टिलेज ट्रांसपेरेंट होती है नेचर में, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, थिन कोलेजन फाइबर। जबकि इलास्टिक फाइबर में क्या होता है, इलास्टिक में इलास्टिन, मतलब यहाँ पे भी क्या होता है, थिन इलास्टिन फाइबर। और फाइबरस में क्या होगा, यहाँ पे थिक कोलेजन फाइबर की बनी होती है, थिक कोलेजन फाइबर। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें, तो पहला आपका हो गया सेप्टम ऑफ नोज। जो हमारी 2 नोज होती हैं, नोज के बीच में जो डिवीजन होता है उसे कहते हैं हम सेप्टम ऑफ नोज। ठीक है, दूसरा आपका सी शेप डिस्क जो होती है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फैरिंक्स बोलते हैं जो, फैरिंक्स में। ठीक है, फैरिंक्स में हो गया। और तीसरा जहाँ पे आपका स्टर्नम और रिब जुड़ता है, यानी जो हमारा क्या होगा, जॉइंट क्या बोलता है उसे, बोल दो जॉइंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, थिन इलास्टिन फाइबर का तो एक ही याद करो, टिप ऑफ नोज। ठीक है, टिप ऑफ नोज। दूसरा पिन्ना ऑफ ईयर। अगर इसमें एक एग्जांपल याद रखो आप, इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बोन के बारे में। बोन होती है हमारी हार्ड एंड नॉन प्लाएबल। नॉन प्लाएबल का मतलब उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम मोड़ नहीं सकते हैं। इसमें भी वही जो बोन होती है, बोन में 3 चीज़ें देखने को तो मिलेगी, मतलब उसके कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे फाइबर्स होंगे, यहाँ सेल्स होंगे, और यहाँ मैट्रिक्स होगा। फाइबर्स कौन सा होगा, देख ऑब्वियसली बात है, बोन कैसी होती है, वाइट, और वाइट किसका होता है, कोलेजन का, यानी सिर्फ और सिर्फ कोलेजन फाइबर देखने को मिलेगा यहाँ, कोलेजन फाइबर। दूसरा सेल्स यहाँ पे वही सेम 3 होती है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, बाकी मैट्रिक्स में भी इसमें 2 चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो बस। मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक चीज़ें होती है और इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। हम बात करते हैं अभी किसकी, पहले इसकी बात करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। इसमें भी वही होगा, ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, इमेच्योर डिवाइडिंग सेल्स है। ऑस्टियोसाइट क्या है, और ये भी वही आपका पेरिफेरी पे होगा, या तो अंदर। पेरिफेरी मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाहर, या तो अंदर भी बाहर भी, इस वाले केस में, यानी कि पेरिफेरी होगा, पेरिफेरी ऑफ बोन। ठीक है, ऑस्टियोसाइट भी कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लैकुने में प्रेजेंट होता है ये भी। और इसके बारे में अगर बताऊँ, लैकुने में होता है। और यदि मैं इसके बारे में बताऊँ कि एक बोन में एक ही ऑस्टियो, मतलब एक बोन में
एक लैकुने में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑस्टियोसाइट होगा। ये पिछले वाले में जो हमने पढ़ा था कॉन्ड्रोसाइट में, उसमें तो ऐसा ज़रूरी नहीं था, उसमें 2 थे, लेकिन बोन वाले केस में सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट ही होगा एक लैकुने के अंदर। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होगा? ये मैच्योर सेल्स होंगे, कि बोन डिग्रेडिंग सेल्स होंगे। ये इनका काम क्या होता है? बोन को डिग्रेड करना, बोन डिग्रेडिंग। और हमें पता है बोन में क्या होता है? कैल्शियम होता है, यानी कि ये क्या बॉडी में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने की क्षमता रखते हैं या इंक्रीज कर देते हैं। ये जो आपका ऑस्टियोब्लास्ट और जो आपका ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट दोनों मिलकर ग्रोथ मेंटेन करते हैं। किसकी? बोन की। ग्रोथ ऑफ बोन मेंटेन करते हैं। फिर यदि मैं बात करूँ और थोड़ा अच्छे से, जैसे कि ये हमारी क्या है? बोन है। मैं पहले बोन बना देता हूँ। ये बोन का ऊपर वाला रीजन यानी सॉफ्ट वाला, और ये है कॉम्प्लेक्स वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पंजी बोन। स्पंजी बोन यानी थोड़ा फ्री है। और यहाँ पे ये है कॉम्पैक्ट बोन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके रेड बोन मैरो। क्या होते हैं? रेड बोन मैरो। उसके साथ ही यहाँ पे आपके 2 कैनाल्स होंगी, 2 कैनाल के बीच में एक और तीसरी कैनाल होगी, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ फिल्ड होगा। और ये क्या है आपका? येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो। यहाँ पे आपकी 2 हमें जैसे दिख सकती है, ये और ये जो अंदर आपको चीज़ दिख रही है, जो मार्क किया, ये और ये 2 कैनाल जो होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं हैवर्शियंस कैनाल। क्या बोलते हैं? हैवर्शियंस कैनाल। अब इन 2 कैनाल्स को जोड़ने वाला जो कैनाल होता है उसे बोलते हैं वोल्क्समैन कैनाल। क्या बोलते हैं? वोल्क्समैन कैनाल। वोल्क्समैन कैनाल 2 हैवर्शियन कैनाल को जोड़ने में काम आता है, इसे बोलते हैं वोल्क्समैन कैनाल। और ये जो वोल्क्समैन कैनाल है सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में मिलेगी, अदर देन मैमल्स में नहीं मिलेगी। सिर्फ मैमल्स में होगी, अदर देन नहीं होगी। ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात कर लो। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी आपके कौन कौन से आ गए? एग्जाम्पल की बात कर लो मैट्रिक्स में, और 2 टाइप के होते हैं ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक में आपका आ गया एक तो भाई म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जो कि हाइलुरोनिक एसिड बनाता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा आपके फाइबर्स आ गए। फाइबर्स कौन सा? भाई कोलेजन वाला। और तीसरा यहाँ पे एक और प्रोटीन बनता है, इसे कहते हैं हम ऑसिन प्रोटीन। क्या कहते हैं? ऑसिन प्रोटीन। दूसरा इनऑर्गेनिक की बात करो तो यहाँ पे आपका बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, PO3 4- होता है, कैल्शियम फॉस्फेट बोल लो, और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ऑर्गेनिक की वैल्यू कितनी तक होती है? 30 to 40% होता है, और आपका इनऑर्गेनिक होता है 60 to 70% होता है। ठीक है। इनऑर्गेनिक में आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जैसे ये है, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दे रखा है आपका, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दे रखा है। ठीक है। ये आपका रिफरेंस पूरा टाइप आ गया। ठीक है। अब ये क्या है आपके? ये आपके 2 हवर्शियन कैनाल है, ये भी हवर्शियन कैनाल है, ये भी हवर्शियन कैनाल है। हवर्शियन कैनाल और हैवर्शियन कैनाल को जोड़ने वाला जो कैनाल होता है, ये होता है आपका वोल्क्समैन कैनाल। क्या होता है ये? वोल्क्समैन कैनाल। और यदि सिंगल की बात करूँ तो ये होता है हवर्शियन कैनाल। ये आपका एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दे रखा है। यही था हमारा चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब इफ यू लाइक दैट वीडियो एंड डू शेयर with your friends and your aspirants. Good luck for your NEET 26. In next video we will gonna start our another chapter of botany, which is cell, the unit of life. So be subscribe and get notified. Thank you.